मुख खोल दो, मुख खोल दो, लाइट खोल दो। बस एक लाइट। All right. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंफर्म कीजिए आपको स्लाइड सही नज़र आ रही है और आवाज़ भी सही आ रही है। हेलो जी अबरार, अबरार यस सर, आ रही है सर। आवाज़ भी ठीक आ रही है और स्लाइड भी सही नज़र आ रही सर है। आवाज पे जी ओके, जी सर। ओके, थैंक यू। All right, we are starting our deep learning lectures number 26. Um, as usual, my first question uh, is there anything which is not clear to you from our previous material? And please ask that. Okay, everything is fine? All right. Okay, in our previous lecture, we learned about para, parameter, parameter-based machine learning linear classifiers. That means we looked at the linear classifier in which the parameters are used and adjusted. And we took an example of a, which is your project also. We took the example of a dog, a picture of a dog, which we want to uh, do that through the machine learning, that can we predict it rightly that it is a dog, and we want to see the computations which are carried out in there and match them. So we learned that in this we learned about the making a list of labels out of the three things. Our given image to test is a dog, and we want to distinguish it among three classes: dog, cat, and panda. So we set our seed to a specific value for this example, because this seed value will has been planned in this way that it will give us the correct situation for testing the working of the example. So we will set the seed one if we want to regenerate the same results to verify. And in that we generated this parameters or weight matrix randomly, its size being 3 by 3072 and a bias vector of size 3.
we read the image of the dog through the CV2 image read into ORIG, and then converted that to a um, flattened image vector. We resized it. The given image may not be 32 by 32, so we resized it to 32 by 32 and then flatten it, which means change it into one big vector of size 3072. This image in the next block below here, we calculated the score by taking the dot product of the image and the weight and adding the bias to it. To be calculated what our machine learning system is calculating, the score of that. And then we compared, um, we ran the loop for all three cases, and we saw what is the result of the score which we carried out this score calculation previously. What is its result for the all the classes, and it printed that, and we found the dog value came out to be this, cat this, and panda this, and we found that okay, it is computationally verifiable. You can use smaller size, weight, and you should use to yourself see the results and demonstrate that at least the values will be as per your calculation. However, to verify it with the picture, so you can use this picture of the same dog, and if you use the same seed one and same size of arrays, then these should be the correct, the right answers, and it shows okay, you have recognized the dog rightly. Okay, so after that we learned that what will be the loss function if it does not, every time it does not predict rightly. So if there is an error, how would you adjust the weights and train it and make it predict rightly? This is our next step. In that, we learned about the loss function, which was the basically the difference between the calculated answer and the given correct answer, target answer. So we learnt about the loss function and using the loss function for optimization. So here is the example of loss function we learned. And then we saw two types of loss function. One was SVM loss function, which is simply this either zero or the difference of the error and then taking its average, or it was a squared hinge loss function. In this case, in SVM, either simple or squared. And then we saw the hinge loss for the SVM case for the three pictures and mathematically calculated to see that how this hinge loss indicates the correct and wrong predictions and their values. For the correct prediction, it was 0. For incorrect prediction, it was 1 was 5.9. This is 5.2, 3.72 was the average. Okay. The other loss function we learned, entropy loss, it was similar except we used exponent and the log value in this case loss function, but approach is similar. It carries out based on the probability. This loss function predicts the probabilities by calculating this. And in this case also, we, in the similar way, we found the loss value for each cases of our test vectors or our training vectors, and then summed the losses, took their average, and found out the average cross entropy loss uh, and the for this case. And we took the example
and looked at the calculated values for the cross entropy loss and softmax classifier for that. Okay. Then the other step was, okay, if you have seen the loss, you have identified the loss, and that is a parameter for you to set the stage for optimization of the system. So now we want to use this loss. We use this loss to optimize the system. Optimization means how to reduce the loss to the minimum possible value and get the best results. That is optimization. And we had learned in mathematical stage the optimization thing. Same thing we used here, that you take the, you find what is the right direction. You take a small step. You take a small step in the right direction of gradient descent. That gradient wise you should descend to the minimum. For that you need to decide which direction you need to move and how, what step you need to take. And we have learned that if there is a curve for the minimization, and if you take small steps in the right direction, you will reach the minimum. The reaching the minimum of this error is optimization. That is what optimization is, right? So we find this, take this step. Test step is, as we learned in the mathematics, it will be small change in the W, but taking care of minus of the signs of the derivative. हमने ये देखा मैथमेटिक्स में कि डेरिवेटिव का जो साइन है उससे अपोजिट डायरेक्शन, उससे अपोजिट में हम अगर अपने बेसिक पैरामीटर या एक्स में मूव करेंगे और स्टेप लेंगे तो वी विल मूव टूवर्ड्स द मिनिमाइज्ड आंसर. तो लॉस हमारा मिनिमम होगा, परफॉर्मेंस हमारी बेस्ट हो जाएगी. दैट इज ऑप्टिमाइजेशन. Next is regularization, which we will see later after this, which is in fact our today's topic. So in optimization is this, जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा अगर 2 डायमेंशनल है तो ये प्लॉट्स हैं, जो इस केस में ये, और मल्टीपल डायमेंशन 3 डायमेंशन है तो इस तरह से है कि आपके स्लोप्स के कर्व किसी भी सिम से आ सकते हैं, और आपने बहुत सारे केसेस को स्लोप्स को मद्देनजर रखते हुए इस मिनिमम की तरफ आना है आपने. ये बायस ट्रिक हमने सीखा था. इट वाज जस्ट कि ये बी को एब्जॉर्ब कर लें हम इस डब्ल्यू में, ताकि हम ये बायस को अलग से ट्रीट ना करें. इट वाज जस्ट बाय, ये बी को इधर हमने फिक्स कर दिया और इधर ये 1 डाल दिया और इस तरह बायस ट्रिक हो गया. ये वो है ऑप्टिमाइजेशन का करने के लिए सूडो कोड, कि आपने ये ग्रेडियंट को एवेलुएट किया बाय यूजिंग दिस लॉस डेटा एंड डब्ल्यू, और इस ग्रेडियंट का एक स्मॉल स्टेप लिया, इस वैल्यू का एक स्मॉल स्टेप, अल्फा इज ए फ्रैक्शन विद माइनस, तो ये हमारा ग्रेडियंट की साइन का अपोजिट कर लिया, और एक स्मॉल उसका फ्रैक्शन लेके अपने करंट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू में ऐड किया. ये डब्ल्यू की हम चेंज करते हैं, पैरामीटर में चेंज करते हैं इन द राइट डायरेक्शन सो दैट वी रीच द मिनिमम. ये वो हमारा मेन पॉइंट है. ये हमने इसमें सॉफ्ट मैक्स आउटपुट पर फंक्शन इस्तेमाल की, लेकिन उससे ज़्यादा ये था कि ये हमारा ये सॉफ्ट मैक्स, ये सिग्मॉइड फंक्शन जो यहाँ पे शो किया है आउटपुट के लिए वो है. अदरवाइज हमारा मेन काम ये सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई हमने की है यही एक्स डॉट डब्ल्यू पे जो पहले था, और आखिर में प्रिडिक्ट करते वक्त इसको कन्वर्ट किया थ्रू दिस सिग्मॉइड फंक्शन, जिसकी हम और डिटेल आज सीखेंगे. ये उसका हमारा कोड का एग्जाम्पल, बाय गिविंग दिस our entering our parameters, arguments at the command level, and carrying out those calculations which we saw, that the x is the input, y is the correct answer. हम इसको
इस डेटा को लेके इसको हम ये रीशेप किया, हमने y को रीशेप कर लिया और x के में ये वंस का वेक्टर जो था बायस वाला वो लगा दिया, x में वंस के वेक्टर को ऐड कर दिया, जो बायस ट्रिक वाला था वो किया, ये y है जो करेक्ट आंसर्स हैं, और फिर हमने ये इस्तेमाल इसको स्प्लिट कर दिया इस डेटा को, ये x और y जो हमारे हैं एक आंसर्स हैं लेबल्स और एक हमारी इनपुट है, इनपुट मैट्रिक्स और आउटपुट और करेक्ट आंसर्स के लेबल्स ये x और y हैं। तो हमने इसको स्प्लिट बेस इस x और y को यहाँ 50% बेस या जो भी हमें परसेंटेज चाहिए स्प्लिट किया, तो ट्रेनिंग का पार्ट 50% या जो भी हम कहें यहाँ से, और टेस्टिंग का पार्ट उसमें आइडेंटिफाई हो गया, अलग अलग हो गया। और फिर हमने वो रैंडम नंबर जनरेटर से W को फिल किया, लॉस का इनिशियलाइज किया वेक्टर, और फिर यहाँ पर हमने epo is how many times you run the full data, how many times you do that. तो हमने we ran this data for multiple times for our this for predicting the output. तो हमने ये ट्रेन डाटा का जो वैल्यू थी इनपुट, इसको डॉट W से लिया, ये वो कैलकुलेशन है, इस पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई की और इस तरह से हमारी प्रिडिक्शन कैलकुलेट हो गई इसको। और फिर हमने वो प्रिडिक्शन और y रियल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो एरर निकल आई। इस एरर को स्क्वायर करके सम किया, तो हमने ये हम इसको लॉस का नाम दे दिया हमने, ये एरर जो है एरर इज द लॉस, तो उसको हमने स्क्वायर्ड एरर को सम करके लॉस के उसमें दिया, और फिर ये लॉस जो है ये अपने लॉस का जो अरे है उसमें अपेंड कर दिया ये लॉस। और फिर वो ग्रेडियंट के लिए एक्स और एरर का डॉट प्रोडक्ट लिया, इसको ट्रांसपोज करके इन दोनों को, इस एक्स का और एरर का डॉट प्रोडक्ट लिया, इससे हमारा ये ग्रेडियंट निकल आया। इस ग्रेडियंट को हमने माइनस जो हमने कहा था कि स्लोप के माइनस से अल्फा को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया उस वैल्यू को डब्ल्यू में फॉर चेंजिंग फॉर दिस वैल्यू, और फिर यहाँ पर हमने उसको रिजल्ट्स को प्रिंट कर दिया। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का पार्ट है, लेकिन हमने बेसिकली हमारे इंटरेस्ट मेन चीज़ ये थी कि वहाँ हमने प्रिंट किया प्रेडिक्ट टेस्ट की वैल्यू x की, अब हम प्रिडिक्शन को टेस्ट करें तो टेस्ट वैल्यू जो x की है और उसको w से कंप्यूट करके अब हमने वो प्रिडिक्ट वाले को इस्तेमाल किया, तो ये हमारी प्रिडिक्शन इसमें निकल आई। तो अब जब रिपोर्ट जनरेट हमें करनी थी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, तो हमारी टेस्ट की वैल्यू y और प्रिडिक्टेड वैल्यू y, यानी टेस्ट डाटा में जो करेक्ट वैल्यू दी हुई थी और टेस्ट डाटा से में जो प्रिडिक्टेड वैल्यू निकली, इन दोनों के बेस पर हमने ये रिपोर्ट जनरेट की आउटपुट पे, जो हमारी ये रिपोर्ट, ये आउटपुट रिपोर्ट जनरेट हो गई। यहाँ ये हमारे प्रिडिक्शंस प्रिसीजन, ये वाले पैरामीटर्स अभी हमने नहीं सीखे हैं, ये बाद में सीखेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक्यूरेसी ऑफ आवर प्रिडिक्शन यहाँ हो गई, यहाँ लिस्ट प्रिंट हो गई। ये इसका पिक्टोरियल व्यू हमने देखा कि किस तरह ये एक्चुअली दो तरह के ये डाटा को लीनियरली इसने स्प्लिट कर दिया है, और ये जो आपका लॉस फंक्शन का बिहेवियर इस तरह से है जो हमने अगर प्रोवाइड करने के, शुरू में लॉस ज़्यादा था, बड़ी तेज़ी से कम हुआ और बहुत लो वैल्यू पे चला गया। तो हमारा ये वाला काम हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो अब हम ये पिछले मैंने आपको रिव्यू किए टू कनेक्ट द होल थिंग, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेस का देखना समझना, रिपीटेडली उनको रिलेट करना नई चीज़ होने की वजह से एक ज़रूरत है, और हम उसको टाइप करते हैं। हमारा एम ये रेगुलाइजेशन था, मगर टू फिट द रेगुलाइजेशन इन द होल कॉन्टेक्स्ट वी क्विकली हैव रिव्यूड द कॉन्टेक्स्ट।
अच्छा, अब फिर ये एक फैक्टर, अब ये लास्ट फैक्टर है हमारे इस डोमेन में, जो हम इसके सीख रहे हैं कि फीचर्स से क्या हैं एक पूरे सिस्टम के, पैरामीटर्स क्या हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट फंक्शन क्या है जो अप्लाई की जाती है, एक्टिवेशन फंक्शन, और लॉस क्या है, लॉस की कंप्यूटेशन कैसे होती है, लॉस के बेस पे मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है। अब एक फैक्टर रेगुलराइजेशन है जो हमें सीखना है। अच्छा, अब इस रेगुलराइजेशन क्या है, हम अभी तक हमारा सारा फोकस ये था कि जब हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान या लर्निंग के दौरान एरर को मिनिमाइज करें। तो हमने एरर को लर्निंग के दौरान मिनिमाइज किया। अभी आपने प्लॉट भी देखा कि एरर शुरू में ज़्यादा थी, हमने राइट डायरेक्शन में स्टेप लिए और अपने पैरामीटर्स को ऐसे एडजस्ट किया कि वो एरर कम होती गई और हम ऑप्टिमाइज होकर हमने रिजल्ट ले लिया। तो हम एरर को लर्निंग टाइम में, जो डेटा हमारा लर्निंग वाला होता है उसकी वजह, उसमें जो एरर जनरेट होती है, लर्निंग का जो पार्ट है डेटा का, उसका एक इनपुट वेक्टर होता है और एक उसके साथ एक आंसर वैल्यू होती है हर वेक्टर की। तो हम इसके केस में लर्निंग के जो डेटा का पार्ट है उसमें ट्रेनिंग के दौरान एरर को कम करते हैं। ओके, ये काम हमने किया है अभी तक जब हमने ऑप्टिमाइजेशन की है, मगर एट टाइम्स अगर आप अपना मॉडल ओवर फिटिंग बनाएं, बेसिकली हम उसकी डिटेल भी देखेंगे ओवर फिटिंग, तो ये होता है कि आपकी ट्रेनिंग में तो वो बहुत आइडियल परफॉर्म कर रहा होता है, यानी आपकी लॉस या एरर जो है वो मिनिमाइज हुई हुई होती है। लेकिन जब आप उसको अननोन डेटा पर बाद में यूजेज लेवल पे आते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी एरर अच्छी नहीं है, इट्स परफॉर्मिंग रिलेटिवली प्रिटी पुअर। ये वो सिचुएशन है जहां ये रेगुलराइजेशन का फैक्टर आ जाता है कि अगर आपने उसका मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी रखी, इतनी ज़्यादा रखी कि वो आपके उस डेटा पे ओवरफिट हो गया और उसके रिजल्ट्स को, सिर्फ उन चीज़ों को आइडियल आंसर देना शुरू कर दिया। आपकी जो फंक्शन है, हमारी फंक्शन जैसे हमने बताया, फंक्शन कैन बी फ्रॉम लेस कॉम्प्लेक्स टू मोर कॉम्प्लेक्स। हमारे, हमने जो कहा सबसे सिंपल केस हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स वाला मॉडल था, लीनियर, मगर हम फिर उस पर m1x1, m2x2, m3x3 ये डायमेंशंस ऐड करते गए और इसको, इसकी लेवल ऑफ डायमेंशंस बढ़ाते गए। अच्छा, जितनी आप डायमेंशन का लेवल बढ़ाएंगे उसके पास फिट होने का डेटा पे चांस बढ़ेगा, इसलिए आप उसको कॉम्प्लेक्स करते हैं और डायमेंशन बढ़ाते हैं। लेकिन अगर ये काम ओवरडू हो जाए तो वो, फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल से कि वो उस पर ओवर फिट हो जाता है और उसका नतीजा क्या होता है कि जब जनरल डेटा आता है तो उस पर एरर ज़्यादा देता है। अगर ओवर फिट ना हो, नॉर्मल फिट हो, फिट तो हमें उससे मैच करना है, लेकिन अगर वो नॉर्मल फिट हो तो फिर तो एरर आपके अननोन डेटा पे भी कम रहती है। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन इतना लिया कि वो ओवरफिट हो गया तो वो फिर आपके अननोन डेटा पर उसकी परफॉर्मेंस पुअर होती है। ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो अल्टीमेटली ये है कि जब हम अननोन डेटाज दें तो उस पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो इस एम को अचीव करने के लिए एट टाइम्स हमें ये भी करना पड़े कि हमने जो ओवर फिट फंक्शन उसको दे दी थी, हम उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम करें, वो उस पर ओवर फिट ना हो, नॉर्मल रहे, और हमारे इस अननोन डेटा पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो हम इवन जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है
पॉसिबली एट द एक्सपेंस ऑफ इंक्रीज ट्रेनिंग एरर। अगर उस वजह से ट्रेनिंग एरर में कुछ पहले की निस्बत बढ़ती है, वी डोंट माइंड टिल द टाइम हमारी एरर फॉर द अननोन डाटा जिसको हमने इससे पहचानना है इस सिस्टम से, उस पर परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस हम अच्छी करते हैं, विल बी हैप्पी। यहाँ ये हम बात कर रहे हैं, ये रेगुलराइजेशन है कि हम उसको रेगुलराइज करेंगे उस चीज को। सॉरी, अच्छा, अब रेगुलराइजेशन में हमने सारी इसको, ये उसकी पिक्टोरियल एग्जाम्पल यहाँ हम दिखा रहे हैं रेगुलराइजेशन की, जो अभी मैंने इतनी तफसील से आपको बात बताई उसकी ये पिक्टोरियल। हम कह रहे हैं कि हमारे ये डाटा पॉइंट्स थे, ये जो है ये हमारे डाटा पॉइंट्स हैं, ये जो रेड, दिस वाज आवर डाटा। अच्छा, इसको अगर आप वन वेरिएबल इस डाटा पॉइंट्स को फिट कर रहे हैं अपने जो प्रिडिक्टर है, जो आपने सिस्टम डिजाइन किया जो प्रिडिक्ट करेगा इनकी वैल्यूज, अगर आपने उसको लीनियर लेवल पे लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स, विच मीन्स x1 a1 या w1 x1, तो y इज इक्वल टू एम एक्स लेवल की अप्रोक्सीमेशन, लीनियर एक्सप्रेशन अगर आपने इस डाटा पे की, जो आपका ये डाटा है डॉटेड डॉट्स का, तो वो ये ऑरेंज की लाइन बनेगी, इसका बेस्ट फिट लाइन, जो बेस्ट फिट होता है। आपने इन डॉट्स पे बेस्ट फिट फाइंड किया, मे बी बाय टेकिंग द डिस्टेंसेस एंड देयर स्क्वायर्स, तो आपको पता चला कि यार बेस्ट फिट लाइन ये है, जो हम करते हैं अक्सर। आप स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस लाइन को मिनिमाइज करते हैं, जो हम एरर करते हैं, तो हमारा ये बनेगा, ये लाइन ऑरेंज। तो ये है अगर हम इसको लीनियर लेवल पे कर रहे थे, फिटिंग, फिट करना, ट्रेनिंग, इट सीम्स कि इट्स नॉट गुड इनफ। इसमें अच्छी खासी एरर्स हमें नज़र आ रहे हैं रियल डाटा से, दे आर क्वाइट एट मैनी प्लेसेस क्वाइट अपार्ट। हम कहते हैं लेट्स इम्प्रूव इट। ट्रेनिंग में हम अपने मॉडल को ज़रा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं और उसकी एक डायमेंशन पे आप टू डायमेंशन पे ले जाते हैं, ये हमारा, और अब हमारा ये स्क्वायर लाइक बिहेवियर आप समझे, टू डायमेंशनल प्लॉट ये बन रहा है हमारी अब इक्वेशन, ये वाली हो गई जो ग्रीन में है। तो हम देख रहे हैं, ओ दिस हैज़ वेरी नाइसली इस दिस प्रिडिक्टर जो आपने बनाया, अब डायमेंशन बढ़ा के टू डायमेंशनल किया इसको, यानी स्क्वायर एक और डायमेंशन ली, तो ये इस पे ग्रीन होके बड़ा अच्छा मैच हो गया। अब इस प्लॉट पर अगर आप कहीं पे भी प्रिडिक्ट करेंगे वैल्यू, यहाँ की करेंगे, इस जगह की करेंगे, इस जगह की करेंगे, तो ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो गिवन डाटा पे ट्रेनिंग की वजह से जो हमारा प्रिडिक्टर का प्लॉट बन रहा है वो ये ग्रीन बन रहा है, विच इज़ गुड। इसकी एरर भी बहुत कम होगी एंड इट फिट्स वेल। ये अच्छी ट्रेनिंग है, मैक्सिमाइजेशन भी है, सब कुछ। अच्छा जी, अब हमने कहा कि अच्छा और हम मॉडल को कॉम्प्लेक्स करें, और डायमेंशंस ऐड करें, W1 X1 W2 X2 W3 X3 W4 X4, हमने कॉम्प्लेक्सिटी अपनी डायमेंशंस की और बढ़ाई प्रेडिक्टर बनाने देते वक्त। अच्छा, अब वो ये बन गया ब्लू, ये ब्लू वाला। अब ब्लू बनने का मतलब ये हुआ कि अभी भी हम देखें इनमें से कोई भी वैल्यू जो आपके टेस्ट डाटा की है, ये जो आपके ट्रेनिंग डाटा की वैल्यू है, इस पर आप देखें तो ये ब्लू वाले की भी एरर उसी की तरह बड़ी परफेक्ट है, मे बी और बेहतर हो। ये जो थोड़ा सा ये वाला है, दिस मे नॉट पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स, मे बी इसके क्लोज क्लोज गुजर रहा है या इस पे मैच कर रहा है, अच्छा मैच कर रहा था वो, ये भी उसी तरह बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है, हर गिवन पॉइंट पे ये बिल्कुल एक्यूरेटली गुजर रहा है। मगर इसका प्रॉब्लम ये है कि इन पॉइंट्स पे ये ओवरफिट इस हद तक हो गया है कि अब अगर इनके दरमियान का आप बिहेवियर देखें, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, तो बिल्कुल ऑफ है। इधर इन दो पॉइंट्स के दरमियान प्रिडिक्ट करना चाहे तो यहाँ है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान आप प्रिडिक्ट करेंगे तो वो ये प्लॉट बन रहा है।
इसी तरह इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान की प्रिडिक्शन ग्रीन में ये वाली थी, अब ये बन रही हैं। और तो अब ये मैच तो है, आपके इन डेटा पे तो फिट है, मगर ये ओवर फिट है, क्योंकि इस डेटा से हट के जो भी आपका डेटा आता है इन बिटवीन, उस पर इसके रिजल्ट्स एब्सर्ड हैं। आपकी चीजें अननोन जो आप ट्राई करोगे वो इन जोन्स में आएंगी। कोई आपका एक्स यहाँ पे आ गया तो आपको बिल्कुल इनकरेक्ट रिजल्ट मिल गया, एक्स आपका इधर आ गया, बिल्कुल इनकरेक्ट रिजल्ट, जबकि जो ट्रेनिंग डेटा पर उसके वैल्यूज हैं वो परफेक्ट हैं। ये ओवरफिटिंग कहलाती है। और इसको खत्म करने या कम करने के लिए रेगुलराइजेशन है। और रेगुलराइजेशन यही काम कर रहा होता है कि आप एक फैक्टर डालते हैं अपने इस डिजाइन में, जो इस हद तक ये जो जंपी बिहेवियर है वो उसको नहीं होने देता, कुछ स्मूथिंग इफेक्ट डालता है। अगर आप उस चीज को डिजाइन कर रहे हैं तो आप इतने जंपी बिहेवियर या इतनी हाई कॉम्प्लेक्सिटी की बजाय आप थोड़े स्मूथन तरीके से मूव करते हैं, और आप अननोन डाटा पे क्रिएट होने वाली इनएक्यूरेसी को कंट्रोल करते हैं। ये रेगुलाइजेशन। ओके, ये अब हम उसकी थोड़ा सा इक्वेशंस की शक्ल में देख लेते हैं। ये हमारी क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन जो हमने निकाली थी, और अच्छा, अब रेगुलाइजेशन को हम देखेंगे कि हाउ डज इट फिट इनटू आवर स्कीम ऑफ थिंग्स। कि हमने पहले जैसे देखा कि हम जब फिट कर रहे थे और मैक्सिमाइज कर रहे थे, तो हमने लॉस को लिया, उस लॉस को मिनिमाइज किया, ये हमारी अप्रोच थी। तो हम उस अप्रोच को लाते हुए देखेंगे कि हमारा रेगुलाइजेशन उसमें किस तरह अपना रोल प्ले करेगा। तो वो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि पहले हम चलते हैं दोबारा, लेट्स, ये हमारी जो फेवरेट एक गुड लॉस फंक्शन की थी एग्जांपल, एक हमारा एसवीएम लॉस का था और एक हमारा ये जो था क्रॉस एंट्रोपी लॉस था, ये दो हमने सीखे थे। तो हम लेट्स लुक एट दी क्रॉस एंट्रोपी लॉस, जो हम कह रहे हैं कि आमतौर पे ज़्यादा बेहतर फंक्शन लॉस का समझा जाता है। तो हमने वो लॉस फंक्शन दोबारा यहाँ लिख दिया। ये वही है कि आप उस पर्टिकुलर केस के लिए जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो गिवन आंसर है, गिवन आंसर वाज एस, स्कोर ऑफ गिवन आंसर वाज एस वाई आई, और कैलकुलेटेड स्कोर वाज दिस फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास एस जे। तो अगर हम इन दोनों को इसके इसके तमाम केसेस का सम लेके और इस प्रिडिक्टिव वैल्यू से डिवाइड करके और लॉग लेते हैं और माइनस करते हैं, तो ये हमारा क्रॉस एंट्रोपी लॉस निकल आता है उस केस की प्रिडिक्शन के लिए। यानी जो अभी से ये प्रिडिक्शन की थी उसको रियल वैल्यू से आपने कंपेयर किया और आपने एक तरह से लॉस को एज ए प्रोबेबिलिटी वैल्यू इस केस में निकाला। ये हमारा क्रॉस एंट्रोपी लॉस था। हम वहां से इसको कनेक्ट करना चाहते हैं कि वेयर डज दिस थिंग कम इन। इसकी एक इनपुट वेक्टर पर लॉस आप कैलकुलेट करें तो वो एल आई है, L1 L2 L3। और अगर आप ओवरऑल एवरेज तमाम ट्रेनिंग सेट पे लॉस करें तो हम ऐसे लॉसेस की वैल्यूज को सम करके डिवाइडेड बाय एन करते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस से, तो हमारा एवरेज लॉस ओवर द टोटल डेटा सेट निकल आता है। तो ये हमने पहले किया है, अभी भी रिवाइज मैंने किया तो इसका जिक्र किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हम इस लॉस को मिनिमाइज करके ऑप्टिमाइजेशन हासिल कर रहे हैं।
हम ये करते हैं कि हम एक चीज डिफाइन कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन पेनल्टी। अब हम रेगुलराइज करना चाहते हैं ताकि हम ओवरफिट बिहेवियर को कंट्रोल करें। उस रेगुलराइजेशन बिहेवियर में हमने जैसे अभी कहा था, वी मे हैव टू पे सम पेनल्टी फॉर अवर दिस लॉस। जो हमारा ट्रेनिंग के दौरान लॉस की फिगर है जो हमने ये कैलकुलेट की है, वी मे हैव टू कंप्रोमाइज ऑन इट, वी मे हैव टू पे सम पेनल्टी हियर, बट द फैक्टर ऑफ रेगुलराइजेशन जो हम इसके साथ यहाँ जोड़ देंगे वो हमारे फाइनल रिजल्ट को सुमूदन रखेगा और उस तरह के जंपी अन बैड बिहेवियर फॉर अननोन डाटा नहीं करेगा। तो ये उसके लिए ये हम फंक्शन निकालते। रेगुलराइजेशन पेनल्टी जो है वो एक फंक्शन बेसिकली इस डब्ल्यू हुई की हमने डब्ल्यूज को एक ओवरऑल डब्ल्यू की स्मूथिंग और एवरेजिंग को लेके उसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो अगर हम उसमें भी L1 रेगुलराइजेशन L2 रेगुलराइजेशन लें तो हम यहाँ L2 रेगुलराइजेशन ले रहे हैं जिसका नाम आप लिटरेचर में वेट डिके भी कहोगे। वेट का L2 रेगुलराइजेशन ले कैलकुलेशन जो लें उसी का नाम हमें लिटरेचर में बाज़ का वेट डिके भी नज़र आता है। और वो क्या है कि आपकी जो वेट की मैट्रिक्स है, वेट की एक मैट्रिक्स हमने जैसे देखा था पिछले एग्जाम्पल में 3/3072 या 3 × 3073, ये उसका साइज था, 3 रोज और 3073 कॉलम उसके साइज था। इट्स ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के तमाम वैल्यूज का यानी आप एक ओवरऑल डब्ल्यू के इम्पैक्ट को नॉर्मलाइज लाना चाहते हैं। नॉर्मलाइज में लाना चाहते हैं कि अगर आपके डब्ल्यूज में कुछ फैक्टर्स बहुत ही डोमिनेटिंग इफेक्ट डाल रहे हैं तो उनको स्मूदन आउट कर दें दूसरे डब्ल्यू के फैक्टर्स से, ताकि वो किसी एक साइड पे बहुत ज़्यादा ओवरफिट होकर बिहेव ना करें। तो ये काम आप करें। तो W के तमाम जो मैट्रिक्स के आई जे चीज़ें हैं उन्हें आप लेते हो उस मैट्रिक्स से, और जैसे डबल लूप बनाते हैं हम अपने उसमें कि पहले आप फॉर ए गिवन आई ऑल जेज के ले लेते हैं, तो विच मीन्स ए रो ऑफ डब्ल्यू ली, और इस तरह रोज यहाँ पर बदलते गए तो आपने पूरी मैट्रिक्स के डब्ल्यूज की जो वैल्यूज हैं उनके स्क्वायर लेकर ये आर डब्ल्यू पेनल्टी फैक्टर या रेगुलराइजेशन फैक्टर फॉर डब्ल्यू को ये कैलकुलेट कर लिया। ये उसका इस कैलकुलेशन का कोड कि अब रेगुलेटर जो है वो उसको अंदर डालने के लिए वो क्या है जो हमने अभी वहाँ पे कैलकुलेशन की, ये उसका आपको कोड की शक्ल में, पाइथन कोड की शक्ल में दिखा रहे हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ आवर एन अरे। तो ये हम कह रहे हैं फॉर, ये हमने एक लूप डाल दिया, आई इन दिस अरे इन द रेंज फ्रॉम W टू W डॉट शेप 0, रेंज इसकी 0 से लेके W की जो शेप 0 है यानी नंबर ऑफ रोज के लिए ये नंबर ऑफ रोज, और सेकंड लूप J जो 0 से लेकर और W के शेप का डायमेंशन 1। व्हाट मीन्स देयर दो फॉर लूप, ये नंबर ऑफ रोज के लिए, ये नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। हम आगे भी सीखेंगे और पीछे भी ये देख चुके हैं कि इसको आप जिप के तरीके से कंबाइन भी कर सकते हैं आई और जे वाले को। यहाँ हमने दो लूप्स ही दिखाए हैं। बेसिकली ये वो कैलकुलेशन है कि इन दो लूप्स में डब्ल्यू आई जे हर एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू को स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। ये पेनल्टी को इनिशियली 0 रखा था, इसमें अकोमोलेट करेंगे डब्ल्यू के स्क्वायर्स फॉर होल डब्ल्यू मैट्रिक्स। तो ये हमारा पाइथन कोड में कैलकुलेशन ऑफ रेगुलराइजेशन पेनल्टी आर डब्ल्यू निकाल लिया हमने, जो अभी पीछे देखा था। ये फैक्टर हमने इसलिए लिया था कि इसको हम उसमें ऐड करेंगे।
ताकि लॉस फंक्शन का जो फॉर्म है बेसिक फॉर्म उसके अंदर ये रेगुलाइजेशन फैक्टर डालेंगे ताकि वो लॉस फंक्शन को स्मूथन रख के आगे के स्टेप्स हमारे करें। तो ये हमने अभी सीखा दोबारा कि पुराना हमारा लॉस फंक्शन क्या था। ये हमारा यहाँ स्क्वायर लॉस फंक्शन नहीं है, ये L1 ऑर्डर का है। स्क्वायर का होगा तब भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लॉस फंक्शन हर इनपुट वेक्टर के निकाले, उन सबको सम किया, उनको टोटल नंबर ऑफ लॉस वेक्टर से डिवाइड किया, तो ये हमारी एवरेज लॉस फंक्शन थी जो कैलकुलेशन में। इसमें हम ये जो हमने पेनल्टी वेक्टर फॉर वेट मैट्रिक्स की स्मूथिंग के लिए पेनल्टी फॉर रेगुलराइजेशन कैलकुलेट अभी की थी, वो ये थी RW। इसका जब हम अपना वो जैसे हाइपर पैरामीटर सेट करते हैं, अब इसका कितना पोर्शन हम इस लॉस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ओवरफिटिंग से अवॉइड कर सकें, वो ये अल्फा है। ये आप हाइपर पैरामीटर की सेटिंग में इस्तेमाल करेंगे। एक दो बड़े इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर्स हैं आपके काम में। एक हमने पीछे सीखा, जब आप मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं और आपने मिनिमम की तरफ जाना होता है और हम कहते हैं यू स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन एंड यू विल रीच द मिनिमम। एक हमने उस वक्त सीखा कि वो जो अल्फा, उसका नाम हमने रखा था कि वो जो अल्फा स्टेप आप लेते हैं टू रीच द मिनिमा इन मैक्सिमाइजेशन पार्ट, वो हाइपर पैरामीटर है। वो बहुत बड़ा भी नहीं ले सकते, तो वो जंप अराउंड करने लगेगा टू दी अदर साइड एंड दिस। उसको बहुत छोटा लेंगे तो बड़ा स्लोली मूव करेगा और आपकी इटरेशंस का तादाद बहुत बढ़ जाएगी और टाइम बहुत डिले हो जाएगा। उसके साइज को ऑप्टिमाइज करना इज ए हाइपर पैरामीटर जो आप मल्टीपल रन्स के साथ ऑप्टिमाइजेशन में वो पॉइंट फाइंड करते हैं। इसी तरह ये जो आपने यहाँ रेगुलराइजेशन का वैल्यू निकाला है, इसका क्या फैक्टर है जो आप एरर के अंदर डालेंगे ताकि आपका स्मूथिंग इफेक्ट आए और आपका डेटा बेहतर रिजल्ट्स दे सके ऑन द रियल डेटा। तो ये अल्फा, ये जो गैमा है यहाँ, गैमा इसमें, गैमा ओके। तो ये गैमा को डिफाइन करना है कि ये RW का 0.1 होगा, 0.01 होगा, 0.5 होगा। इसकी वैल्यू को हम हाइपर पैरामीटर में एडजस्ट करते हैं। बहरहाल इसका एक फैक्टर हम इस अपनी एरर के कैलकुलेशन में डाल के रेगुलाइजेशन का काम करते हैं। ये हमारा रेगुलाइजेशन को मैथमेटिकली उसमें डालने का व्यू है। अब ये यहाँ पर उसकी, अब हम L2 रेगुलाइज, हमने ये L1 रेगुलाइजेशन देखी थी पीछे, ये हमने, अच्छा नहीं, अभी हमने जनरल रेगुलाइजेशन देखी है कि हमने जो भी एल्स कैलकुलेट किए उसको कैसे उस पर रेगुलाइजेशन का ये फैक्टर जाएगा। अब हम इसको टोटल पिक्चर में दोबारा रिव्यू करके देखते हैं, यही अल्फा RW को अभी जो हमने बैक में स्टार्टिंग फ्रॉम द एरर इसको फिट करते हैं दोबारा। तो ये अभी हमने यहाँ इसको फिर एज ए होल बता दिया हमने कि लें जी, अब अगर L2 रेगुलराइजेशन क्या होगी, जो L2 लॉस के अंदर आप ज्वाइन करते हैं तो हम उसको L2 रेगुलराइजेशन कहते हैं। यहाँ अब ये जो आप एवरेज रेगुलराइजेशन ले रहे हो, इसमें आपने क्रॉस एंट्रोपी के फैक्टर को ये लिया, ये क्रॉस एंट्रोपी है। इसके वैल्यूज तमाम वेक्टर्स पे क्रॉस एंट्रोपी लॉस कैलकुलेट किया, उसको n से डिवाइड किया, तो एवरेज लॉस की फिगर क्रॉस एवरेज क्रॉस एंट्रोपी लॉस आपने यहाँ फाइंड कर लिया। ये इसमें यही फैक्टर जो अभी हमने बताया कि WIJ के स्क्वायर का
तमाम मैट्रिक्स के लिया और उसको अल्फा से, एक हाइपर पैरामीटर है, इससे मल्टीप्लाई किया और इस लॉस फंक्शन में इसको, इसकी जो भी वैल्यू हुई ऐड सब्ट्रैक्ट वो वैल्यू इसमें डाल दी। तो अब हमारी लॉस फंक्शन की वैल्यू को हमने चेंज किया है फॉर क्रिएटिंग स्मूथिंग इफेक्ट, कि हम लॉस पर ओवर सेंसिटिव रिस्पॉन्स करेंगे तो हमारा वो थर्ड केस हो जाएगा ब्लू प्लॉट का, कि जो उस पॉइंट पे तो बिल्कुल मैच कर जाएगा लेकिन उससे हट के देयर कुड बी ए बैड परफॉर्मेंस। ये है। इसी तरह ये क्रॉस एंट्रोपी का केस था और इसी तरह लॉस का एसवीएम लॉस जो हमने सीखा है अभी, दो तरह के लॉस सीखे थे, उस पर ये था। उसमें लॉस हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू और आपकी गिवन वैल्यू में सब्ट्रैक्ट किया, और या आपका आंसर ज़ीरो होगा, अगर नेगेटिव में है तो आप आउटपुट ज़ीरो ले लेते हो कि ओके, और या अगर आप पॉजिटिव में हो तो आउटपुट इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हो। तो हम ये लॉस मल्टी क्लास एसवीएम लॉस इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया था, वो करें, उसका एवरेज निकालें, तो यही केस, और उस पर यही स्मूथिंग इफेक्ट ऑफ रेगुलराइजेशन फैक्टर या पेनल्टी डालें, ये डब्ल्यू आई जी स्क्वायर अल्फा, तो हम इस पर भी करें। तो हमने यहाँ दिखाया कि दोनों तरह के लॉसेस जो हमने पीछे सीखे थे उन पे ये फैक्टर रेगुलराइजेशन का किस तरह उसके साथ ज्वाइन होके उसको रिवाइज कर देता है। तो अब हमारा इस रोशनी में हमारा वेट अपडेट रूल क्या बना, कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा करंट स्टेटस ऑफ वेट ये था, तो हमने ये जो फंक्शन W की है, ये हमारे W की फंक्शन है, इसको, इसका डेल्टा लिया, ये ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ग्रेडियंट का हमने कहा था माइनस साइन, जब हमने मैथमेटिक्स में सीखा था, तो जो भी कोई ग्रेडियंट है उसके माइनस साइन जो है वो आपका स्टेप होगा, और ये आपका स्टेप साइज है। तो अब आपका स्टेप साइज मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ ग्रेडियंट साइन इज द करेक्शन जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी चीज में टू टेक इट टू मिनिमाइजेशन। तो हमने इस W में ये वाली चीज सब्ट्रैक्ट की, ये माइनस साइन तो उस वजह से कि आपने ग्रेडियंट का अपोजिट लेना था, तो आपने W में ये डेल्टा इफेक्ट डाला, W और डेल्टा W, और अब रिवाइज W आपका ये हो गया, यानी बेस्ड ऑन योर लॉस फंक्शन एंड रेगुलराइजेशन इफेक्ट, जो आपके W का वैल्यू है, आपने अब उसको अपग्रेड करने के लिए उसके डेल्टा के, उसके ग्रेडियंट के साइन का अपोजिट लिया, उसका एक स्टेप लिया और पिछले W को रिवाइज किया। ये वो है कि आप W को अपडेट कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग, ये वो काम है। तो ये अगर हम नॉर्मल में W को ये कर रहे थे, तो अब जब रेगुलराइजेशन फंक्शन डलेगी, ये था, हम प्योर ऑप्टिमाइजेशन जब कर रहे थे तो हम ये काम कर रहे थे, उस वक्त हम रेगुलराइजेशन, अब अगर हम रेगुलराइजेशन भी इसमें रखना चाहते हैं इस W की ट्रेनिंग करते वक्त, तो यहीं पर ये रेगुलराइजेशन का फैक्टर ऐड हो गया कि लैम्डा RW जो भी इसकी ये हमने कैलकुलेशन की हुई है, कि पहले खाली W ग्रेडियंट के और स्टेप ऑफ मूविंग पर अपडेट हो रहा था, तो अब इस W के अपडेट में ये गैमा और ये RW भी मल्टीप्लाई हो गया। सर ये गैमा तो नहीं है? जी जी बताएं, ये मुझे इसका नाम में रोमन नेम में वो हो रहा है, क्या है ये? सर लैम्डा। लैम्डा, ओके, लैम्डा। थैंक यू। तो लैम्डा RW, ठीक, ये ओके, आई वाज फॉरगेटिंग दैट नेम। तो ये लैम्डा है, बट इट डजंट मैटर, वी आर सेइंग जिस तरह ये अल्फा है, और ये टिपिकली हम ये वाले लैटिन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द नॉर्मल थिंग, यानी ये एक कांस्टेंट है जो स्टेप साइज को बता रहा है, और ये एक और कांस्टेंट है लैम्डा, ओके।
जो दूसरे कांस्टेंट को बता रहा है। ये कांस्टेंट स्केल कर रहा है हमारे इसको वेट के जो रेगुलाइजेशन थी, और ये डिटरमिन कर रहा है वो उस स्टेप को जो हमारी मैक्सिमाइजेशन में टुवर्ड्स द मिनिमाइजेशन ऑफ एरर को स्टेप कर रहा था। तो ये दो हाइपर पैरामीटर है जिनको हम सेट करते हैं जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं सिस्टम, और इनका ये रोल है। ओके, ये अब उसने उसमें भी दो ऑप्शन फर्दर बता दिए कि L2 रेगुलाइजेशन में हम इसके स्क्वायर्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमने लॉस वाले में किया है इसी तरह रेगुलाइजेशन में भी दोनों टाइप्स मौजूद हैं कि या आप उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स के स्क्वायर लो और उससे ये रेगुलाइजेशन का या वेट डिके इसका नाम रखा है, इस वैल्यू को लो और इसको उसके अंदर अपेंड करो जो आपका मौजूदा फंक्शन है लॉस का। या उसने कहा L1 रेगुलाइजेशन भी होती है, यानी आप बजाय स्क्वायर लेने के आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच टर्म लेकर और उसको ऐड करें मैट्रिक्स की, तो L1 रेगुलाइजेशन का चीज़ भी बन जाती है। तो हम एट टाइम्स जब हम थोड़ा सा और फर्दर रेगुलाइजेशन पे ग्रो करते जाएंगे तो एक ये इलास्टिक नेट रेगुलाइजेशन कहलाती है, जो दोनों L1 और L2 रेगुलाइजेशंस को शामिल कर लेती है। ठीक है, आप यानी एक सिंपल केस में आप L1 रेगुलाइजेशन शामिल करा सकते हो अपने मॉडल में, L2 रेगुलाइजेशन को शामिल कर सकते हो, और एक ये इलास्टिक नेट में आप रेगुलाइजेशन 1 और रेगुलेशन L1 और L2 दोनों के इम्पैक्ट को शामिल कर सकते हो। ये रेगुलाइजेशन के डिफरेंट लेवल ऑफ मॉडल्स टाइप्स हैं। तो ये देखिए, ये अब यहाँ पे L1 रेगुलाइजेशन, ये L2 रेगुलाइजेशन, ये एक कांस्टेंट फैक्टर बीटा से मल्टीप्लाई होकर इसमें ऐड होकर, और अब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो अब ये RW जो है ये इलास्टिक नेट रेगुलाइजेशन कहलाएगी, जिसमें दोनों का इम्पैक्ट शामिल है। एज यूजुअल ये जो है हमारा फैक्टर ऑफ लैम्डा, वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा एज ए हाइपर पैरामीटर। तो अब हम इसको जस्ट अपनी ऑलरेडी नोन एग्जाम्पल में हम अब इसको रेगुलाइजेशन को डाल के देखते हैं। रेगुलाइजेशन के पार्ट को उसमें डाला है जो हम पहले से ही मॉडल हमारे पास था और वो वर्किंग था, उसमें अब हम इसको डाल के अपने कोड की अपडेट करेंगे। तो इमेज क्लासिफिकेशन का कोड जिसको हम पहले देख चुके हैं, उसमें हम रेगुलाइजेशन को शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये उसकी सारी लाइब्रेरीज हैं, तमाम पैकेजेस, ये sklearn के लीनियर मॉडल प्री प्रोसेसिंग, मॉडल सिलेक्शन, पाइमेज सर्च के प्री प्रोसेसिंग, डेटा सेट्स, और फिर ये इमेज यूटिलिटीज़ का पाथ्स, और ये आपके कमांड को पार्स करने का आर्क पार्स। ये हमारी मोस्ट ऑफ मैनी ऑफ देम वी ऑलरेडी नो। ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वाले क्लासिफायर जो हमने मैक्सिमाइजेशन के लिए सीखा था, वो उसके लिए डाला था। ये लेबल्स को जो हमारे पास लेबल्स इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से स्ट्रिंग्स होते हैं, डॉग, कैट, ऑल दैट, उनको रिस्पेक्टिव इंटीजर नंबर देने के लिए ये हमने इस्तेमाल किया है। ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को बाय ए पर्टिकुलर रेशो स्प्लिट करने के लिए हम ये मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम अगर वो प्री प्रोसेस करना चाहें, इमेज के साइज को कट डाउन करना है या और उसको प्रोसेसिंग करनी है, वो है। और ये डाटा के लोड का है पास। इसको करने के लिए हमारे ये फिर वही सारे स्टेप्स, लॉस फंक्शन, नंबर ऑफ इपोस, हाउ मेनी टाइम्स यू रन द टेस्ट योर ट्रेनिंग डाटा टू ट्रेन द थिंग, फुल डाटा को कितनी दफ़ा चलाते हैं उसका वो इपोज है। ठीक, लॉस फंक्शन हम देख चुके हैं, लर्निंग रेट हम चूज चुके हैं, रेगुलाइजेशन टर्म्स हम सीख चुके हैं, और वो अब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे।
ये हमारा एज यूजुअल वो पहला पार्ट है कि आप अपनी पार्स करना चाहते हैं कमांड के आर्गुमेंट्स को। ये हमारा अगेन सेम पार्ट है कि हमने उसको प्री प्रोसेस किया 32 by 32 के साइट पर और फिर डेटा सेट को लोड किया बाय यूजिंग द लिस्ट ऑफ प्री प्रोसेसर, जो इस केस में खाली एक ही है कि हमें ये करना है साइज की कटिंग, तो ये लोड कर लिया और फिर इसको आपने इमेज पाथ्स पर, ये हमारा प्रीवियस कोड है, इस पार्ट पे अप्लाई किया। ये अब उसका यूज वही जो मैं कह रहा था, लेबल एनकोडर, इसको एज ए नंबर आपने लेबल कर लिया। टेस्ट डाटा, ये स्प्लिट किया डाटा को, डाटा और लेबल्स, और उनको स्प्लिट किया इन द ट्रेनिंग पार्ट एंड ए टेस्ट पार्ट। इस केस में टेस्ट साइज आपने 0.25 का है, 75% और 25% पे किया। ओके, वी हैव डन इट, दिस पार्ट रिमेन्स कॉमन। अभी हम इसके बारे में नहीं हो रहे। अच्छा, अब ये हम अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन व्हेन वी ट्रेन अवर दिस एसजीडी क्लासिफायर, ग्रेडियंट डिसेंट क्लासिफायर में अब रेगुलराइजेशन के पार्ट को हम डालेंगे। तो ये अब हमने ये ले लिया कि ये हमने रेगुलराइजेशन के सेट है कि जिसमें नन, रेगुलराइजेशन L1, रेगुलराइजेशन L2, ये हम इनको ऊपर लूप ओवर कर रहे हैं और हर रेगुलराइजेशन इफेक्ट को हम देखना चाहते हैं बारी बारी। तो ये एस डी जी क्लेरिफायर यूजिंग ए सॉफ्ट मैक्स लॉस फंक्शन, सॉफ्ट मैक्स लॉस फंक्शन हमने जो देखी जो एक्सपोनेंशियली जा रही होती है और मिडिल पर हम 0.5 पे डिसाइड करते हैं कि उससे ऊपर या उससे नीचे 1 या 0 का हमने कौन सा करना है। और स्पेसिफाइड रेगुलराइजेशन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे फॉर 10 ईपोज। 10 ईपोज का मतलब है 10 टाइम्स हम अपने ट्रेनिंग डाटा को इटरेट करेंगे, पूरे ट्रेनिंग डाटा को 10 टाइम्स इटरेट करेंगे, ये ईपोज का मतलब है। तो अपने ये फॉर्मेट में आपने आर किया और ये इस जगह फिर होगा ट्रेनिंग मॉडल, ये आपका ट्रेनिंग मॉडल है विद आर पेनल्टी, यानी रेगुलराइजेशन में ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो क्या है वो इधर से आएगी इस लूप में। पहले आपने अगर नो रेगुलराइजेशन इस्तेमाल की तब आपका क्या रिजल्ट आया विदाउट रेगुलराइजेशन और परफॉर्मेंस, फिर आपने L1 रेगुलराइजेशन इस्तेमाल की फिर आपका क्या रिजल्ट आया, फिर L2 इस्तेमाल की फिर क्या आपका। तो ये लूप 3 दफ़ा चलेगा, तीनों टाइप की रेगुलराइजेशन के फैक्टर्स को शामिल करके आपके रिजल्ट्स के इम्पैक्ट को दिखाएगा। तो ये आपका ग्रेडेड डिसेंट वाला क्लासिफायर, जिसमें ये जो क्लासिफायर है इसमें आपने लॉस का फंक्शन ये लॉग डिफाइन किया हुआ है, लॉस पेनल्टी आर जो भी है, और मैक्सिमम इटरेशंस जो हैं वो आपकी ये हैं जो हमने ईपोज बताई थी, 10 ईपोज आपने देखी थी। लर्निंग रेट का ये कांस्टेंट हमने बताया था कि लर्निंग रेट स्टेपिंग टू मैक्सिमाइजेशन अल्फा वो यहाँ है, और ये 0.01 इसका है ईटा में आपने लिया, ये जो रेगुलराइजेशन का लेमडा है, और ये रैंडम स्टेट के लिए 42 के नंबर इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्रेनिंग के लिए फिट करने, ये इसका मतलब है नाउ यू ट्रेंड, ये ट्रेनिंग फिट मींस ट्रेंड ऑन, ट्रेनिंग का जो पार्ट है आपने जब सेपरेट किया हुआ ट्रेनिंग के लिए x और ट्रेनिंग का y, करेक्ट आंसर्स का लिस्ट और आपके इनपुट वेक्टर्स का मैट्रिक्स, इन दो पर ट्रेनिंग मॉडल को, ये मॉडल को डिफाइन किया आपने यहाँ पे और उस मॉडल पर ये ट्रेनिंग आपने अप्लाई की। इस मॉडल में रेगुलराइजेशन बारी बारी तीनों टाइप की इस्तेमाल होगी और वो यहाँ पेनल्टी आर में आर की वैल्यू के जरिए से आएगी। ओके, और अब हमारे इस मॉडल के
स्कोर आपने कैलकुलेट किया, स्कोर के लिए आपने क्लासीफायर को अब आप एवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है। आपने टेस्ट का एक्स और टेस्ट के बाद यहाँ ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग के बाद आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट पार्ट का एक्स और टेस्ट पार्ट के वाई पे मॉडल स्कोर का मतलब है अब आप इसको टेस्ट डाटा पे चेक कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं। और ये चीज़ आपने लेट से ACC को एक्यूरेसी या समथिंग उसका एब्रीवेशन आपने रख लिया कि स्कोर का मेरा एक्यूरेसी क्या है, तो ये आपने अप्लाई किया। ओके, अब आपने ये प्रिंट कर लिया, आपने ये इन्फो तो हम डाल रहे होते हैं, यहाँ पहला वेरिएबल डालेंगे या पेनल्टी एक्यूरेसी, और उसकी ये है पेनल्टी एक्यूरेसी का फॉर्मेट फ्लोटिंग पॉइंट विद 2 डेसिमल एक्यूरेसी। आगे हम ये डॉट फॉर्मेट कहते हैं, तो ये आर पहला इस जगह आ जाएगा, हम ये कह रहे हैं कि किस टाइप की पेनल्टी है, पेनल्टी की टाइप, और आगे फिर एक्यूरेसी कि एक्यूरेसी क्या है, ये दो चीज़ें हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ वो प्रिंट हो जाएगा कि कौन सा मॉडल रेगुलराइजेशन का टाइप, और एक्यूरेसी में जो एक्यूरेसी की वैल्यू है परसेंटेज में देने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हम प्रिंट करेंगे। तो ये अब हमारा रिजल्ट यहाँ आ गया। इसके मुताबिक रेगुलराइजेशन डालने के बाद हमारे रिजल्ट की वैल्यू ट्रेनिंग मॉडल पहले विद नन पेनल्टी, फिर तो नन के साथ, नन पेनल्टी के साथ ओके, नन पेनल्टी के साथ एक्यूरेसी जो थी वो 50% है, ठीक। अच्छा, अब ट्रेनिंग मॉडल विद L1 पेनल्टी एंड L1 पेनल्टी के साथ एक्यूरेसी 52.53, ये अब हमारे टेस्ट डेटा पर रिजल्ट्स हैं, ठीक। ट्रेनिंग मॉडल विद L2 पेनल्टी विच इज रेगुलराइजेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, तो L2 पेनल्टी के साथ एक्यूरेसी 55%। तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एक्यूरेसी बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन मॉडल यहाँ पर हम देख रहे हैं, okay? तो दैट इज द थिंग। और इसमें वही बात के वही लैम्डा आप एडजस्ट करके और इनको रिपीट करके और अपने बिहेवियर को फर्दर स्टडी करके और इम्प्रूव कर सकते हैं। इनके बारे में हम और ज़्यादा बात जो है और इसका इम्पैक्ट और वो देखने में और इसकी इम्पोर्टेंस को फर्दर स्टडी करेंगे। हमारा जो टारगेट है कि हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ कर सकें फॉर इमेज क्लासिफिकेशन, और वहाँ हम देखेंगे कि किस तरह वो ओवरफिट हो गया, और फिर आपने रेगुलेशन की और उसके हाइपर पैरामीटर को सेट किया, तो फिर वो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई ओवरफिटिंग की। ओके, वी आर डन विद द रेगुलराइजेशन, और हम जो अब ओवरऑल मॉडल हमने सीखा उसके तमाम एस्पेक्ट्स को हमने, मेजर एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया। तो before we start for the next part, any question you have so far up to regularization, you have any question? Okay, all right, so we can now we move to the next topic for our today's class. All right, let's get to the okay, all right. ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट में हमने ये चीज़ें जो सीखी, अब इनकी नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल, क्योंकि अब हम इन चीज़ों को फर्दर इन्वेस्टिगेट करके इनकी और डेप्थ को एक्वायर करके हम, हमारा टारगेट क्या है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पे जाएं और वहाँ इमेज क्लासिफिकेशन करें। तो अब नेक्स्ट लेवल की डिटेल्स लाइक अभी हमने एक स्टेप फंक्शन या
एक्टिवेशन फंक्शन देख ली और उससे अपना एक मॉडल को पूरा वर्क कर लिया और पूरी एग्जाम्पल को चला लिया। अब हम हर एक के देखेंगे। फर्ज करो इवन लेट्स स्टेप फंक्शन, there are a variety of step function which have their own advantages and disadvantages, and you need to select suitable for your application. तो हम एक किस्म के मुख्तलिफ डेप्थ ऑफ दिस सेम आर्टिफिशियल मॉडल जो हमने पहले बनाया था और जो हमारा ये चलेगा, सिंगल परसेप्ट्रॉन लेवल का जो है, यही चीज़ हमने कहा था बाद में मल्टीपल लेयर्स का न्यूरल नेटवर्क पे मॉडल एक्सटेंड होगा जो मॉडर्न टाइम में है और जो हमारे न्यूरल नेटवर्क में होगा, मगर उसकी सिंपल बेसिक्स जो हैं वो क्योंकि परसेप्ट्रॉन मॉडल से आती हैं, तो हमने दोबारा ये सिंगल लेयर जिसमें सिर्फ एक इनपुट की लेयर होती है जहाँ पर ये फीचर्स का आप सेट अप्लाई करते हैं, विच कैन बी ईदर सिलेक्टेड पैरामीटर्स वर्कड आउट बाय एक्सपर्ट आफ्टर फीचर इंजीनियरिंग, or it can be, in case of like image, it can be a straight raw pixel values. ये फीचर की वैल्यू होती है, ये इनपुट है, यहाँ कहीं आप कहते हैं हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसके फौरन बाद ये आउटपुट आ गई, इनपुट और आउटपुट, नो इंटरमीडिएट लेयर। इसी को जब हम बाद में एक्सटेंड करेंगे और करते हैं तो बहुत सारी इन बिटवीन ऐसी यहाँ लेयर्स डाल देते हैं नोड्स की, और वो उनको हिडन लेयर्स कहते हैं, वो ऐड करके वो डीप न्यूरल नेटवर्क बन जाता है। और हम जब कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क देखेंगे तो उसमें इस तरह के डीप न्यूरल नेटवर्क होंगे, मगर उसकी बेसिस क्योंकि यहाँ से हमारे परसेप्ट्रॉन वाला मॉडल जो शुरू में बना था उसमें इसके बेसिस हैं, तो हम उन्हीं को ऐसे लर्न करके ग्रो करते हैं। तो हमने कहा एक लेयर में ये इनपुट, ये आउटपुट, ये आउटपुट पे एक्टिवेशन फंक्शन, ये जो स्टेप फंक्शन हमने अभी लगाई थी एक्टिवेशन फंक्शन थी, और यहाँ ये वेट्स थे, इनपुट इन वेट्स से मल्टीप्लाई होके आउटपुट में जाती थी, आउटपुट बनती थी। अभी हमने देखा कि इस आउटपुट को फिर ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आफ्टर अप्लाइंग दिस स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन हम इस आउटपुट को चेक करते थे फ्रॉम द रियल वैल्यू, इफ दिस इज फाइन बी विद इन द रेंज ऑफ एक्सेप्टेड करेक्टनेस, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते थे। अगर इसमें एरर है तो हम यहाँ वापस आए और हमने W की वैल्यू को हमने देखा कि हमने राइट डायरेक्शन एक स्टेप लिया और उसको रिवाइज किया, और जब हम W की वैल्यू को रिवाइज कर रहे थे तो हमने एक और भी चीज़ कि हमारा वो स्टेप जबकि हमारी ट्रेनिंग सेट को तो बेस्ट रिजल्ट देने के लिए है, लेकिन अगर वो अननोन डाटा की ओवरफिटिंग का इम्कान है ट्रेनिंग के वक्त और उसको ख़राब करने का है, तो हम यहाँ पर हमने वो रेगुलाइजेशन का भी डाला। तो हमने इस W को एक तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्टेप लिया टुवर्ड्स मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, और एक रेगुलाइजेशन का फैक्टर भी इसमें डाला, और इस तरह इस W को हमने चेंज किया जो अभी हमने सीखा है, और इस इनपुट को इस W के साथ ज़्यादा बेहतर मैच होता जाएगा इस प्रोडक्ट में और करेक्ट रिजल्ट की तरफ जाता जाएगा, और ये W हमारा ट्रेन हो जाएगा और वी विल गेट दी डिज़ाइन थिंग जो हमने अभी सीखी है। अब हम देख रहे हैं इनमें से बारी बारी सब ब्लॉक्स को और एक्सपेंड करेंगे। अब पहले हम सबसे ये जो एक स्टेप फंक्शन हमने यूज़ की थी एज एक्टिवेशन फंक्शन, इनको हम बेहतर या डिटेल या ऑप्शन सीखना चाहते हैं, ठीक है, कि वो क्या क्या है। ऑलराइट, इनमें हमारे मॉडल्स में ओके हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनपुट हमारी x1 x2 xn है, एक वेक्टर, एक फीचर वेक्टर x1 से xn था, और हमारा वो वेक्टर जब w के कॉरस्पॉन्डिंग वेट से वो मल्टीप्लाई होता है तो x1 w1 x2 w2 x3 w xn wn का समेशन, ये डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं, समेशन कैलकुलेट होती है। ये हमारी वो कैलकुलेशन है जो उस नोड पे पहुंचती है, समेशन, ये समेशन नोड, ये हम कह रहे हैं, ये वेटेड सम x1 विद w1 x2 विद w2, तो ये सम वेटेड सम कैलकुलेट करते हैं।
फिर इस वेटेड सम पर एक फंक्शन अप्लाई होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। इस केस में हमने वो स्टेप फंक्शन अप्लाई की थी, तो वो एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल होती है। तो इस वेटेड सम पे एक्टिवेशन फंक्शन होने के बाद आउटपुट बनती है, जो फिर या आउट अगर एक स्टेज का है तो फाइनल आउटपुट हो जाती है, और मल्टी स्टेज है तो ये आउटपुट नेक्स्ट लेयर पर फीड होती है। तो ये जो फंक्शन यहाँ का है, हम कह रहे हैं ये है एक्टिवेशन फंक्शन, यानी समेशन ऑफ डब्ल्यू और आई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू और आई, डब्ल्यू और एक्स लेके उस पर एक फंक्शन अप्लाई होगा, दैट इज एक्टिवेशन फंक्शन। तो हमने इस वाले चीज को शॉर्ट फॉर्म में समेशन के साइन में ऐसे लिख दिया, मगर हम कह रहे हैं इस पर ये फंक्शन अप्लाई होगा। इस अंदर की चीज को हम कई दफा शॉर्ट नेम नेट ले लेंगे, कई दफा इसको इस पूरी चीज को हम कोई एक वेरिएबल से शो कर देंगे कि ये पूरा जो है वो टी है। कई दफा हम इस पूरे को ये छोड़ते हुए कि ये हम यहाँ एक्स को इस्तेमाल कर चुके हैं, समटाइम्स अपने इस फंक्शन को शो करने में इस पूरे को एज ए एक्स एस्यूम कर लेंगे, थिंकिंग इट इज ए सेपरेट वेरिएबल एक्स। ठीक, तो इस पूरे को कोई एक वेरिएबल के तौर पे हम यूज करके और फिर हम अपने इस फंक्शन को जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ मुमकिन है। तो इसको फिर एफ नेट, अगर इस पूरे का नाम हमने नेट रख दिया तो फंक्शन अप्लाइड ऑन नेट, जिसमें कि नेट जो है वो ये है एक्स आई डब्ल्यू आई। बट इट समटाइम्स आप देखोगे कि इस नेट की जगह वर्ड टी इस्तेमाल हुआ है, तो एफ ऑफ ओके। अच्छा, तो हमने यहाँ अगर नेट का वर्ड लिया या आगे देखेंगे टी का वर्ड लिया या एक्स का वर्ड लिया, तो हम बेसिकली कह रहे हैं ये कैलकुलेशन, ये जो हमारा वेटेड सम है, इस कैलकुलेशन को फर्दर प्रोसेस करने के लिए फंक्शन है, जिसकी हम एग्जांपल देखेंगे कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। ये सारी एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट हैं। इनके चॉइसेस आपकी एप्लीकेशंस और सिचुएशंस के मुताबिक होते हैं, इसलिए वी विल quickly look at them, how they are, what is their behavior and how they are representative. So we start with activation function. First of all, the one we have already used is this step function. What is a step function? स्टेप फंक्शन ये है कि आपका जो बेसिक पैरामीटर नीचे ये वो नेट है जो हम कैलकुलेट करते हैं, वट एवर वी हैव कैलकुलेटेड। यहाँ पे अब एक्स एक्सिस में एज ए एक्स शो कर दिया। अगर वो पूरी कैलकुलेशन जो समेशन वेटेड सम की थी वो हम एक्स एक्सिस पे लें, तो उसके बेस पे जो डिसीजन होगा इस फंक्शन का जो ये है वो एफ एक्स, यानी इस कैलकुलेशन पर ये फंक्शन अप्लाई करके जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, वो वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ हमारा वो एक्स आई डब्ल्यू आई समेशन है, और यहाँ हमारा आफ्टर अप्लाइंग स्टेप फंक्शन है। तो आप आफ्टर अप्लाइंग दी एक्टिवेशन फंक्शन, इस केस में वो स्टेप है विच सेज कि अगर उस कैलकुलेशन का रिजल्ट जब तक 0 से कम है यानी नेगेटिव है, तो हमारा स्टेप फंक्शन कहता है कि आउटपुट विल बी 0, यानी फॉर ऑल कैलकुलेटेड रिजल्ट स्कोर डब्ल्यू आई एक्स आई लेस देन 0 में, यानी नेगेटिव वैल्यूज में हमारी आउटपुट 0 होगी। और एज सुन एज ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, एज सुन एज स्मॉल ग्रेटर देन 0 इट विल बिकम 1। तो फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ रिजल्ट्स हमारा स्टेप फंक्शन 0 है, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज हमारा स्टेप फंक्शन 1 है। तो 0 and 1 स्टेप एट द पॉइंट ऑफ 0 सडन वो ये। और इसको लिखने का तरीका f ऑफ x या f ऑफ नेट विल बी 1 अगर हमारे उस कैलकुलेशन का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है, विल बी 0 अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, यानी 0 लेस देन 0 है। ये स्टेप फंक्शन जिसको अभी हमने इस्तेमाल कर लिया। इस पर इसका प्रॉब्लम था, इसका इशू था। इसका इशू क्या था कि इसके इस पॉइंट पे एक डिसकंटिन्यूटी है, देयर सडन जंप
तो हम जब अपने मेथड्स में वेट्स और उनके एडजस्टमेंट और एरर की करेक्शन, तो वहाँ तो हम स्लोप्स इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने आपको बताया हम वहाँ पर ग्रेडियंट लेते हैं, ग्रेडियंट डेसेंट के लिए आपको ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है। तो अब अगर वो आप कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये जो सडन चेंज स्पाइक की चीज़ होती है, ये हम कंटिन्यूस जो ग्रेडियंट के लिए चाहते हैं वहाँ कंटिन्यूस फंक्शन होनी चाहिए। तो ये जो जंपी केस है, ये कंटिन्यूस ग्रेडियंट की कैलकुलेशन के लिए इससे ठीक नहीं है, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो ओके, पीपल इम्प्रूव्ड ऑन इट एंड दे सेड कि ऑलराइट, हम ये करते हैं कि हम इसको ये एक चेंजिंग स्मूथ फंक्शन बनाते हैं, और ये फंक्शन का बिहेवियर ये है। ये टी अगर हमारा वो कैलकुलेशन था एक्स आई डब्ल्यू आई, तो हमने कहा हम एक्टिवेशन फंक्शन ये करते हैं 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस टी। टी इज दिस कैलकुलेशन जो हम कह रहे हैं। तो ई रेस्ट टू पावर माइनस टी को डिनोमिनेटर में डाल के और 1/दिस करके जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा फंक्शन इस तरह का बन गया। इस फंक्शन में और स्टेप फंक्शन में फ़र्क सिर्फ क्या है कि ये भी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ पर ज़ीरो ही है, ये भी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू पे प्लस ही है, मगर ये जो इसमें एक सडन जंप था एट ज़ीरो, ये इसने स्मूदन आउट कर दिया, एक्सपोनेंशियली वेरिंग कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ पे दे दी। तो हम कह रहे हैं अगर यहाँ देखें तो कोई -2 से लेकर +2 की रेंज में हमें एक स्मूथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल रही है, जिस पे आप ग्रेडियंट के इम्पैक्ट को आराम से कैलकुलेट करके और अपने करेक्शन ऑफ डब्ल्यू और वो कर सकते हैं। तो ये हमने मसला हल किया। इधर ये वही रहा, उससे कम में 0, उसके बाद 1। चलें जी, ये ठीक हो गया, बेहतर। ये एक टाइम में बहुत ज़्यादा यूज हुआ। सिग्मॉइड हमने भी अपनी कुछ एग्जाम्पल में लिया है। Neural network में this was the most popular one for many years and it has been used till it appears at many places, it has its benefit, तो ये यूज हुआ। इसके अंदर मसला क्या था कि आपको इसमें वो नहीं मिल रहे थे, ये वाली बात कि ये जो माइनस वाला पार्ट है इधर के हिस्से में, ये या 0 या 1, सैचुरेशन पे 0 और 1 थे, इसमें भी 0 या 1 थे। लेकिन एट टाइम्स आप चाहते थे कि मेरी इसकी बैलेंसिंग जो है वो y की 0 वैल्यू पे नहीं है। देखिए इसका जो सेंटर पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट है वो 0.5 पे है, इसका भी 0.5 पे है। y वाइज सिमेट्री का पॉइंट 0.5 है इसका, और दो लेवल 0 और 1 है। एट टाइम्स यू वांट द सिमेट्री इक्वल ऑन बोथ साइड्स, कि यानी आपका सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ y जो है वो 0 पे हो, जब आप एवरेज कैलकुलेट करें तो वो 0 पे हो, और उससे ऊपर और उससे नीचे एक जैसी चीज हो। तो आपका इसका मतलब है अगर आप इसको 0 पे करेंगे तो इधर का आंसर आपका 0 के बजाय -1 और उधर का आंसर 1। तो आपका अगर हम स्टेप के तौर पे सोचें तो अब आपका स्टेप 0 और 1 की बजाय -1 और 1 का स्टेप है। यानी एक रेंज से कम आपकी वैल्यूज हैं तो आप -1 हो, एक रेंज से ज्यादा हैं तो आप +1 हो। तो हमने स्टेप के दो वैल्यूज को चेंज हम चाहते थे ताकि y के गिर्द ये सिमेट्रिकल हो जाए और वो 0 पर हो, 0 पर हो। तो ये इसके लिए tan हाइपरबोलिक फंक्शन बनाई गई। इसके अंदर वही जो कैलकुलेशन ऑफ z है वो वही है जो हमारा ये था, और उसको अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन का वो है e raised to z माइनस e raised to minus z न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में e raised to z प्लस e raised to minus z डिनोमिनेटर में। तो ये इन दो को वैल्यू को एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ कैलकुलेट करके ये प्लॉट बनता है। तो इसके अंदर वो अच्छाई वही रही जो इधर थी कि स्मूथ है, आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, लेकिन आपके पास ये सिमेट्री आ गई कि ये -1 और 1 के दरमियान। तो ये इसके बाद ये इंप्रूवमेंट आया और बड़ा पॉपुलर रहा फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन अब जो लेटेस्ट न्यूरल नेटवर्क से कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क स्पेशली, उनमें अब मौजूदा टाइमों में ये वाले फंक्शन जो उन्हीं की ग्रोथ से आए हैं मगर ये ज़्यादा पॉपुलर है। ये फंक्शन रेलू फंक्शन है, ये रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, यानी
इसमें क्या है, नाम जैसे इसका कह रहा है कि इट्स ए लीनियर, इट्स ए 145 डिग्री टाइप लीनियर, बिल्कुल एब्सोलूट y इज इक्वल टू एक्स टाइप। मगर जीरो से आगे, जीरो से आगे जो x है और जीरो से आगे y, ये देखिए ये x भी 6 और y भी 6, तो बिल्कुल y इज इक्वल टू एक्स टाइप लीनियर, ये है। मगर ये कहता है जी जीरो से कम यानी नेगेटिव वैल्यू में रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जैसे डायोड होता है, वो एक साइड पे कट कर देता है, रेक्टिफाई कर देता है, दूसरी साइड पे चीजों को गुजरने देता है। तो ये वो है जो हमारे अडेप्टर्स में इस्तेमाल होता है। तो वो रेक्टिफायर के तौर पर नेगेटिव वैल्यूज को ये चॉप ऑफ कर दे, नो नेगेटिव वैल्यू विल कम आउट ऑन एफ एक्स। जब नेगेटिव इनपुट होगी तो आउटपुट विल बी जीरो, जब इनपुट पॉजिटिव में जाएगी तो बिल्कुल लीनियर आउटपुट होगी, जो अगर ये 1 होगा उधर 1, ये 2 उधर 2, ये 3 उधर 3, बिल्कुल लीनियर। तो इट्स ए लीनियर थिंग, मगर इट इज रेक्टिफाइड। तो रेलू, और इसका वही जो हमने पीछे फंक्शन देखा, इट विल बी मैक्स ऑफ जीरो एंड एक्स। अगर प्लस में है तो जो भी कुछ एक्स है वही आंसर है, लेकिन अगर नेगेटिव में है तो फिर आंसर जीरो हो जाएगा। यही फंक्शन आगे कुछ इंप्रूवमेंट्स के साथ ये दो फंक्शंस बने इसी पे, क्योंकि अब ये मॉडर्न टाइम में ये बहुत ज्यादा इन हो गए हैं और ये इस्तेमाल होते हैं, तो इनमें फिर काम भी ज्यादा हुआ, इन पे और रिफाइनमेंट्स लोगों ने की। बहरहाल ऑल थ्री ऑफ देम आर गुड इनफ, लेकिन आप अपने ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसका एक ये आया लीकी रेलू। लीकी रेलू में क्या कहा उन्होंने, कहा यार इस हिस्से में यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, ये बिल्कुल जीरो है और फिर ये सडनली इस स्टेप पे जाता है, यानी ये लीनियर पे। यहाँ पे वही डेरिवेटिव का मसला कि डिसकंटिन्यूटी आ गई, हम चाहते नहीं इधर भी डेरिवेटिव रहे जब इस पे शिफ्ट हो, तो लोगों ने ये बनाया लीकी रेलू कि इधर भी ये बिल्कुल एब्सोलूट जीरो पे रुके रहने के बजाय स्लो चेंजिंग इंक्रीज हो, स्लो चेंजिंग। हाउएवर इसका जो लीनियर बिहेवियर है, स्टेट लीनियर, वो यहीं से शुरू होगा। आप जीरो से ही वही देखें, इधर भी 6 और उधर भी 6, प्लस साइड पे जीरो से ऑनवर्ड वही लीनियर प्लॉट है। मगर नीचे भी एक स्लो स्लोप का लीनियर उन्होंने यहाँ दे दिया कि ये बिल्कुल जीरो पे ना रहे, स्लोली चेंज हो। तो अब हमारा ये जो ग्रेडियंट का इशू था वो बहुत मिनिमाइज हो गया। और इसमें लोग जब ऑप्टिमाइज करते हैं तो ये अल्फा भी इसमें एडजस्टेबल है कि ये स्लोप इसका क्या रखना है, तो लोग इस अल्फा से भी बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन एक्चुअली सिर्फ ये क्या कह रहा है कि जब वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो मैं वही y इज इक्वल टू एक्स, ये y और ये x, y इज इक्वल टू एक्स लीनियर। लेकिन उससे कम में जब है, नेगेटिव में है, तो उसका एक छोटा फैक्टर लेस स्लोप, अल्फा इज 0.1 और 0.01, लेस स्लोप होगा। और जब पॉजिटिव में है तो बिल्कुल इक्वल स्लोप होगा 1, y इज इक्वल टू एक्स वाला। इसमें भी, इसमें आपका अल्फा एडजस्टेबल था, मगर इसमें भी यहाँ थोड़ी बहुत डिसकंटिन्यूटी थी। लोगों ने इसको भी एक्सपोनेंशियली यहाँ पर स्मूदन आउट कर लिया बाय यूजिंग इलू। ठीक है, ये एक्सटेंडेड लीनियर यूनिट का, इसमें अल्फा फिक्स है 1, ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और यानी ये आप स्टैटिक टाइम पे एक दफ़ा सिलेक्ट करके और फिर उसको फिक्स कर देते हैं। इसमें तो आप ड्यूरिंग टेस्टिंग वेरी करते हैं, बस ये फ़र्क है, वरना अल्फा दोनों का एडजस्टेबल है। इसमें e रेज टू द पावर x माइनस 1, यानी अगर ये x था तो y इज इक्वल टू एक्स अगर ये पॉजिटिव में है, और y इज इक्वल टू स्मॉल थिंग, ये एक्सपोनेंशियल स्मॉल थिंग ये है जब ये नेगेटिव में है। तो अब हमने यहाँ भी स्मूथनेस डाल दी एक्सपोनेंशियल फैक्टर के ज़रिए से। इधर ये वही रहा लीनियर यूनिट जो हमें चाहिए, और इधर वही रहा लेट्स से -1 जो, या माइनस वैल्यू जो थी वो इसमें चाहिए। इसमें भी ये भी फर्क है, इस वाले केस में माइनस के जोन में वैल्यू जीरो थी, इस केस में माइनस के जोन में वैल्यू माइनस है और स्लोप से चेंज हो रही है। इसमें भी माइनस है और ग्रेजुअली चेंज हो रही है। आगे का ये लीनियर, ये फैक्टर बड़ा यूजफुल है कि जिसमें हमें ना ये सैचुरेशन प्रॉब्लम है ना ये स्टेप इशू है। ये बहुत ही इफेक्टिव है ये लीनियर वाला मॉडल। ये आगे चलता जाएगा जो भी आपकी वैल्यूज पे चल रहा है। तो नाउ यू विल यूज मोस्टली दिस और ए वेरिएंट ऑफ दिस। हम ये कहते हैं रेलू और वेरिएंट ऑफ रेलू। ओके,
So that takes care of our what all activation functions we can use other than the step function जो हमने सीखी हुई थी और पहले यूज कर रहे थे, या sigmoid function जो हमने यूज की थी. So we have learnt about that, and next time then we'll continue with our using of this to our binary case of AND or an exclusive OR, and making a classifier for each one of them and using these activation functions to while implementing them. Okay, any questions? If you have, please ask, or we can then stop here. The time is over. Okay, so see you. Allah Hafiz.